In an unprecedented move, a total of 143 Lok Sabha MPs from opposition are suspended for creating ruckus and disruption on the floor of the House. 95 MPs from Lok Sabha and 46 from Rajya Sabha face suspension right now. While the opposition has all the right to protest against the suspension, a video mocking Vice President Jagdeep Dhankar has gone viral. TMC leader Kalyan Banerjee is seen mimicking Mr. Dhankar here. The Prime Minister, the Office of the President of India, has condemned the incident, calling it shameful and unacceptable. Ahead of the 2024 Lok Sabha election, it was anticipated that the politics between the opposition and the government shall escalate. That's a given. But this politics is devoid of any constructive one. Issues of people seem to have taken a backseat, and they seem to be lost in the politics of disruption. The precious time of Indian Parliament is lost in the political blame game. Is this the kind of politics that we really deserve ahead of 2024? And who exactly is responsible for the kind of ruckus, for the kind of mayhem and disruptions that we have seen in the winter session of the Parliament? Our focus on brass tacks tonight. The House will meet at 2 p.m. If he thinks that there is similarity, then my question is, does he behave in this way in the Rajya Sabha? MPs बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फ़ोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। पहली बार इस लेवल तक जा रहा है कि इसका हद ही नहीं है सर। Let me take you through some numbers first. How exactly it transpired? The suspension spree, it continued in Parliament today as well. So far, as I said earlier, 143 MPs have been suspended so far from Lok Sabha and Rajya Sabha combined. Let's take a look at the timeline of the events and how they actually unfolded. First up, in Lok Sabha, since the security breach, that incident happened on the 13th of December, the number of suspensions have just increased. They've only gone up. And today, 2 more MPs were suspended, adding on to that tally. They were suspended from Lok Sabha. That's the action that the chair took. So far, about 97 members have been suspended as far as Lok Sabha is concerned. Next is Rajya Sabha, the upper house of the Parliament. The similar story unfolded in the upper house of the Parliament as well. On December 18, about 45 MPs were suspended. Hence, now the total number of suspended MPs has jumped to 143. This number is something which we have never seen in the history of independent India, that so many opposition MPs, for their conduct, have been suspended for one particular session of the Parliament. As I said, never ever in the history of independent India, since the Parliament began to convene, such huge number of parliamentarians were suspended. Now, this only tells us the kind of standoff that exists between the government and the opposition right now. Meanwhile, the row continued to explore over Kalyan Banerjee mimicking Vice President Jagdeep Dhankar. That was the goalpost that changed today. Today, Prime Minister Narendra Modi called the Vice President of India and informed him, and I'm quoting right now, that he's pained over the abject theatrics of MPs in Parliament. The Prime Minister went on to say that he's also been at the receiving end of these insults for about 20 years. He went on to say that it's unfortunate that the Vice President's office and post has also been insulted by the present act. Now, even the President of India tweeted and condemned the opposition MPs for mocking the Vice President's office. Hello, Moto. Let's have a look at this tweet of the day, which is a Motorola tweet of the day. And as we show you this tweet, I'm just going to quote what was said by the President of India. I was dismayed to see the manner in which our respected Vice President was humiliated in the Parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the parliamentary tradition we are proud of, and the people of India expect them to uphold it. Unquote.
Well, let's also introduce our panel of esteemed guests who are joining us on Brass Tacks tonight. We have Mr. Leher Singh Siroya. He is a Rajya Sabha MP from the BJP. We also have Mr. S.T. Hassan, who is a Lok Sabha MP from the Samajwadi Party, presently facing suspension. Mr. Shogato Roy, an MP from the All India Trinamool Congress, currently facing suspension right now, is also joining us on the broadcast. We'll also have other esteemed member of parliament join us in just a bit. Mr. Maluk Nagar, the Lok Sabha MP of the BSP, and Kanimodu Somu, the Rajya Sabha MP from the DMK. Gentlemen, thank you so much for joining us on the broadcast. Mr. Siroya, first to you. The key allegation which has been made against the BJP is that the office of the chair of the speaker, or the manner in which the chair has exercised its powers, is disproportionate. देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जी। और कोई भी कॉमेडियन ने आज तक किसी भी मंच पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कभी नहीं की है, चाहे कितना ही बढ़िया कॉमेडियन हो। राजनेताओं की कॉमेडी होती आई करते आए हैं और राजनेता उसको टॉलरेट करते आए हैं, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो कॉन्स्टिट्यूशन पद पर बैठे हैं जी, उनकी मिमिक्री कभी हमने नहीं सुनी। और दूसरा, जो बिहेवियर मुझे कल्याण बनर्जी पर इतना नहीं है जितना जो बड़े बड़े लोग वहां बैठे थे और जो उनका तालियां बजा बजा करके जो आनंद ले रहे थे, और राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी जो ग्रांड ओल्ड पार्टी कही जाती है उसके सर्वोच्च नेता हैं और उस पद पर बैठे थे वो, जब जिस पर बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे उन पदों पर जो बैठे थे, उस पदों पर आज राहुल गांधी थे और अभी भी उस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। उनका ये आचरण, बच्चों की तरह वीडियो लेना पार्लियामेंट की प्रेमिसेस में। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो जिस तरह से हाउस के अंदर जो ये नारेबाजी करते हैं ये लोग, पिछले मैं 1.5 साल से देख रहा हूं, एक बार भी संसद नहीं चलने दी उन्होंने। कभी ईडी का मुद्दा, कभी अडानी का मुद्दा, कभी मणिपुर का मुद्दा, उनको ये संसद चलने ही देना नहीं चाहते। और जिस तरह से झूम झूम के नारे लगाते हैं ये लोग और जिस तरह की हरकतें करते हैं, और परसों तो हद ही हो गई थी जब कुछ सदस्य गेस्टिकुलेटिंग कर रहे थे, स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और माननीय उपराष्ट्रपति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जी। और एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस समाज से हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, जाट समाज से, तो जाट समाज का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। महाराजा सूरजमल जो भरतपुर के महाराजा थे, उनको न तो अंग्रेज हरा सके और न मुगल हरा सके, और उनका राज्य दूर दूर तक फैला और हमेशा वो अपने मृत्यु तक वो कभी पराजित नहीं हुए। सिरोया साहब, मैं आपकी बात समझती हूँ। मैं आपके सारे तर्क जो हैं हमारे पास ऑपोजिशन के एमपीज हैं उनके पास भी ले जाऊंगी। मेरा सीधा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना है, मैं इसके पहले कि दूसरे लोगों से उनकी राय लूं, कि हमने हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा कि 143 MPs फ्रॉम द ऑपोजिशन आर सस्पेंडेड इन अ सिंगल सेशन। ऑपोजिशन का कहना है कि ये हाई हैंडेडनेस है। आपने इतिहास में कभी देखा क्या कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कभी मखौल उड़ाया गया हो? और ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग, उन्होंने आदरणीय महामहिम मुर्मू जी का भी मजाक उड़ाया था, अगर आपको याद हो तो। और किस तरह की हरकतें इन्होंने की, हम ऐसे हरकतें, देखिए हम भी विपक्ष में रहे हैं, सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी कई वर्षों तक विपक्ष में रहे हैं, हम 2 सदस्य थे, 88, 89 थे, फिर 114 हुए, 161 हुए, लेकिन कभी हमने ऐसी हरकतें नहीं की और संसद को कभी इस तरह से हमने नहीं रोका। और इस तरह की नारेबाजी, इस तरह का व्यवहार मैं ये सारे बिंदु दूसरे गेस्ट के पास भी ले जाना चाहूंगी। आई एम बीइंग टोल्ड दैट कनिमोडू सोमू, द राज्यसभा एमपी फ्रॉम द डीएमके, इज आल्सो जॉइनिंग अस इन जस्ट अ बिट। बट हसन साहब, आपके पास आऊंगी, आपकी राय लेना चाहूंगी। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में कभी 143 एमपी एक बार में सस्पेंड नहीं हुए, तो बीजेपी का कहना है कि इस तरह का कंडक्ट हमने पहले कभी देखा भी नहीं है, कि आप प्राइम मिनिस्टर की मॉफ्ड पिक्चर लेके पार्लियामेंट में आ जाएं, फ्लोर पर आ जाएं, आप चेयर के पास जाने की कोशिश करें, आप पार्लियामेंट को चलने ही ना दें। विपक्ष की पूरी मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पहले ही तय कर लिया गया था कि हम सदन को नहीं चलने देंगे। ये किसने आपसे कहा कि पहले से तय कर लिया गया था? जी, हमारी तो एक डिमांड थी कि गृह मंत्री जी आए,
अपना वक्तव्य दें और चले जाएं। क्या हर्ज था अगर 10 मिनट के लिए आते, बोल के चले जाते? इतनी बड़ी घटना हो गई। देश के अंदर सबसे सर्वोच्च पंचायत के अंदर 2 टेररिस्ट घुस गए। ये तो खुदा का शुक्र था कि उनके पास स्मोक था, बारूद था। अगर इतनी इस साइज का उनके पास आरडीएक्स होता तो आज आपके चैनलों पर श्रद्धांजलियां चल रही होती। जान का खतरा सब सांसदों को तो हो गया था। हम भी एक दफा को ये समझे शायद टेररिस्ट घुस जाए अंदर। अगर इस पे हम वक्तव्य चाहते थे तो ये बात कह दी गई कि साहब ये ओम बिरला जी का अधिकार है। अरे दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है, आईडी किसके अंडर में आती है? तो यहाँ पे ये वाकया हो गया। हम 10 मिनट के लिए चाहते थे कि उन्होंने बाहर भी तो स्टेटमेंट दिया कि ऐसी ईगो क्यों मना लेते हैं ये लोग कि 10 मिनट को आते वक्तव्य दे के चले जाते। देखिए, सदन चलाना न चलाना ये जिम्मेदारी होती है रूलिंग पार्टी की। हमने जो इतिहास में आपने देखा, हमने जब भी प्रोटेस्ट करा है देश के लिए करा है जी। हमने अपने पर्सनल फायदों के लिए नहीं करा। मणिपुर के ऊपर भी हमने अगर प्रोटेस्ट करा है बहन बेटियों के लिए करा था। जब भी नहीं आए तो आखिर चाहते क्या है? और आपने 143 सांसदों को निलंबित कर दिया। आपने लगभग ये सांसद जो आते हैं 20 से 25 लाख वोटों के बीच में से निकल के आते हैं। आपने लगभग 30 करोड़ लोगों का अपमान कर दिया। आपने निलंबित कर दिया। ये कौन सा तरीका था? हम तो ये समझते थे कि हमारे संरक्षक हैं चेयर, हमारी जी अध्यक्ष जी हमारे संरक्षक हैं जी। लेकिन हमें अफसोस हुआ इस बात का कि अध्यक्ष जी एक हेडमास्टर की तरह से उन्होंने बिहेव करा और कहीं से भी डायरेक्शन उनको मिली भी है और उन्होंने ये सब काम कर दिया। Mr. Maluk Nagar, do you agree with what ST Hassan is arguing that why is it that the Home Minister did not make the statement? The argument of the government has been that it is the office of the Speaker that takes care of what happens inside the Parliament. The Parliamentary Affairs Minister has already made a statement, and it is not necessary for the Home Minister or the Prime Minister to make a statement on the floor of the House. Do you find that an acceptable argument? मालूक साहब, देखिए एंकर साहब, इसको ना पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को और जो हम लॉ मेकर हैं, जो पार्लियामेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसको समझने के लिए जी मुझे तो लगता नहीं है बहुत सारे एमपीओ में से कुछ ही समझ में आता होगा और एंकर्स को भी बहुत कम समझ में आता होगा। आज हम आपसे समझ लेते हैं कि जो घटना घटी। हाँ, एक तो ये कि जो 143 आप एमपी कह रहे हैं सस्पेंड हुए हैं, वो 143 कह रहे हैं, वो 147 हैं। अच्छा? 147 इंस्टीड ऑफ 143, 4 आज भी हो गए हैं। एक तो ये। दूसरा, अभी हसन साहब कह रहे हैं 130 करोड़, वो 130 करोड़ लोग नहीं है, 142 करोड़ लोग हैं। देखिए, अभी इसको समझने के लिए उनमें 2 आदमी सबसे आगे सामने थे, हनुमान बेनीवाल और मैं खुद। जब बिल्कुल हमारे सामने हुआ, जिसको पकड़ा, मौत हमारे नजदीक से गई है। इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती थी। कल्पना करो अगर वो असली होते तो आज हम आपके टेलीविजन पे बैठने के लिए जिंदा ना होते। इतने डर गए थे कि उनको किसी तरह, अगर बाहर को एमपी भाग रहे थे, हम भी भागे तो पीछे ठोक देंगे। जब नजदीक गए, आपने जब अपना ओपनिंग आर्गुमेंट दिया, गैस बम या कलर बम छोड़ा तो लगा कि आज आंखें भी चली जाएंगी और फेफड़े भी यहीं मर के खत्म हो जाएंगे। मरने से पहले इन्हें मार लें। खूब डट करके हमने उनकी पिटाई भी करी अपने सेफ्टी के लिए, या मरने से पहले मार लें, इस संबंध को ध्यान में। तो एक्चुअल में क्या है, सिक्योरिटी किसके अंदर आती है पार्लियामेंट की? लोकसभा सेक्रेटरीट के जी। तो जिम्मेदारी किसकी बैठती है? स्टेटमेंट देने की, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की। जो बाहर हम मान भी लें कि दिल्ली पुलिस है, वो किसके अंडर आती है? होम मिनिस्टर की। तो किसको स्टेटमेंट देनी चाहिए? होम मिनिस्टर को। तो होम मिनिस्टर बगैर इंक्वायरी से पहले कैसे दे दे, ये सोचना पड़ेगा। दूसरा, एक वो और भी सोचनी पड़ेगी जो गंभीर बात है कि सस्पेंड हुए क्यों? 2-2.5 साल तो हम लोगों के 17वीं लोकसभा के 2019 से 2024 तक के लिए कोरोना कार्यकाल में निकल गए। पिछले 4 सेशन हमारे बंद में निकल गए। केवल जो स्पेशल सेशन था वो चला है।
मालूक तो साहब, फिर तो माफ ये करिए, सोचना माफ करिए, पड़ेगा मैं आपको बीच कि में ये रोक नई रही हूँ, माफ पार्लियामेंट करिए, मैं बनी आपको है, बीच में सेशन रोक रही चलना ही नहीं हूँ। है, तो लेकिन क्यों लेकिन बनी? लेकिन आपने हमारे आपने लोकसभा के आपने अपने चुनाव हो रहे हैं, आर्गुमेंट के तो ओपनिंग में क्यों हो रहे कहा हैं? कि दूसरा जो सबसे बहुत गंभीर सारा बात है, पार्लियामेंट प्रोसीजर जो है, अंदर बहुत अगर सारा बहुत पार्लियामेंट्री serious प्रोसीजर जो matter है जिसमें तुम पार्लियामेंट जिसको नहीं समझ चलने में दे नहीं रहे जाया और जाता तुम है। बाहर आकर के तुम्हें सस्पेंड तक अरे होना मालूक पड़ा। साहब, मेरा सवाल तुम तो सुन बाहर लीजिए। आकर के जो बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान ढांचे में भारतीय संसद की जो परंपराएं हैं उनमें कुछ कहना तुम चाहूंगा। बाहर आए जी, हो जी। और तुम संवैधानिक पद पे बैठे हुए महामहिम देश के उपराष्ट्रपति या सो कॉल्ड चेयरमैन राज्यसभा, उसकी मिमिक्री कर रहे हो। मेरे हिसाब से ये देश के लिए या विदेशों में देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और वो जाट समाज पिछड़े समाज से आते हैं, जिसमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनाल, लोहार, कुमार, उन तमाम की भी कहीं ना कहीं थोड़ा चोट पहुंचती है। नहीं, लेकिन उस इससे अलग हटके हम सोचें। सर, मुझे अनुमति दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए। हमारे साथ कनिमोड़ी सोमू जी भी है, मैं उनको भी डिबेट में लाना चाहूंगी। कनिमोड़ी जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डू यू अग्री विद दिस आर्गुमेंट दैट समवेयर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन disrespected? I mean, it's one thing for the opposition MPs to go ahead and protest near the Gandhi statue in Parliament, but it's another to cross that line and really make a mimicry of the house of the vice president. Do you, as a respectable member of the parliament, agree with that conduct, ma'am? Good evening, ma'am. That has not been, what could you say? That could have been avoided. But in previous acts of the Prime Minister, who has done that inside the parliamentary building in 2018, when he was talking on the no confidence motion, he has mimicred Mr. Rahul Gandhi, which is not acceptable either. The highest power of the India, who's the Prime Minister and who's the supreme power in the parliament, cannot do that inside the house. Number two, he also mimicred Mrs. Mamata Banerjee on a stage when he was campaigning. These two, how it is not allowable? The same way. Because the Prime Minister of India has set a precedent's example for it. And today he claims what we did to the chairman, sir, is wrong. Of course, I don't support that at all. But there is an example set by the highest power of the house, that is the Prime Minister of India, has set an example of doing it so in a public stage and inside the parliament. Okay? And whatever has to be done, it has to be taken up for discussion. Now, why all this has come is the basic question. First, when the security breach which has happened in the Lok Sabha last week, if Prime Minister of India and Amit Shah ji had come to the proceedings of the House and given an explanation, I think everything would have all be set right and we would have gone ahead with the government business. Because the first week of the starting, we all had a smooth operations. We have been passing bills. We have been participating in a healthy discussion. Once there is security breach, we just asked for an explanation. In 2001 also, the same thing happened. At that time, the same BJP government was there. Vajpayee Singh and Adani ji had given the explanation. The next day, the whole day, there was a debate. An explanation was given. And the smooth operations of the House had taken place. Why they don't want to answer these two questions? Why they don't want to come inside and talk? All right, ma'am. So I believe the argument runs both ways, and I'm going to present this argument to you so that I can also hear your side of the argument in the spirit of the debate. The government argues that somewhere the opposition has made this about an ego tussle, because the explanation has already been given by the Speaker's office. A high level, ma'am, just listen to my question, and I'll give you the chance to respond. The Speaker on the floor of the House said, and as I was watching the proceedings, that there is a high-level committee which has already been set, and this entire matter of the security breach should not be seen from a party political point of view, and all of us were equally affected by it. Somewhere that message seems to have been lost in the bipartisan politics or the government versus opposition politics. Please go ahead, ma'am. No, I don't look at it that way, madam. The chair holds the responsibility. Mr. Homrullah ji holds responsible for the whole security of the parliament. I do accept on that. And he has given a statement. Yes, we all welcome that. He has done his job. Hats off to him. But don't you think the Prime Minister of India and the Amit Shah ji do have a responsibility to come and answer and address the MPs inside the house? Don't you think so? Why go and talk in Varanasi? Why go and talk in Ahmedabad? Why go and talk in Gujarat? You can talk it with us. You talk Man Ki Baat with every people of the India. Why don't talk with the member of the parliament? We just ask an explanation.
You do it, then everything goes smooth. That's all. Why all these things? I think that deserves an answer. लहर सिंह सिरोया जी, अगर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट मांगा जा रहा है, if a statement from the Prime Minister and Home Minister is being demanded, what is the big deal? They should come on the floor of the House, give a statement. उनको वक्तव्य देने में इतनी दिक्कत क्यों है? ये सवाल है विपक्ष का। मैं इसका जवाब दूं, इसके पहले एक और बात बताना चाहूंगा। बोलिए। अभी ये कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी के लिए उन्होंने हाउस को स्टॉल किया है। तो जब ये जो लास्ट ईयर जो अगस्त में सेशन हुआ था जिसमें ईडी के मुद्दे पर, क्योंकि गांधी परिवार से ईडी पूछताछ करने गई थी, तो पूरा सत्र हाउस नहीं चलने दिया उन्होंने ईडी के लिए। तो उसमें कौन सा उनका देश का स्वार्थ था क्या? जब हजारों करोड़ रुपए जब लूटे गए हैं तो उनके लिए ईडी पूछताछ नहीं करेगी, इनकम टैक्स एजेंसी पूछताछ नहीं करेगी? तो उनके विरोध में नारे लगाए के एजेंसी को डिमोरलाइज करने के लिए कितने नारे उस समय लगाए थे, मैंने देखे हैं। उस समय तो हमने इनको एक्सपेल नहीं किया, और एक्सपेल किया कुछ भी हुआ हो, अगर किसी ने कोई मिमिक्री हाउस में की, किसी ने नहीं की हो, इसका जवाब ये होता है क्या उपराष्ट्रपति की या राष्ट्रपति की आप मिमिक्री करोगे और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता तालियां बजाएंगे, वीडियो उतारेंगे और सब मखौल उड़ाएंगे? ऐसा कभी नहीं देखा। क्या उनको अगर एक्सप्रेशन गलत किया, सही किया, क्या इसका जवाब ये होता है क्या? एक बात। और रहा जो आदरणीय गृह मंत्री जी का, वो आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर वो संबोधित नहीं करेंगे। जब उनके पूरे तथ्य आ जाएंगे तो वो स्टेटमेंट देंगे। और जांच चल रही है, और उस समय जब दिसंबर की जो 2001 की जो बात है, 3 की जो भी बात है, उस समय क्या हुआ था, उसमें उनको हाथों हाथ मार दिया गया था और तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अभी उनको पकड़े गए, लेकिन ये जो अपराधी पकड़े गए हैं ये मूल अपराधी नहीं है। इनके पीछे ताकतें कौन है जो डिस्ट्रप्शन करना चाहती है, देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ना चाहती है? मैं आपसे अग्री करती हूँ, मगर एक सवाल पूछने की चेष्टा मैं दोबारा करती हूँ। उनकी जांच के बगैर कैसे, उनकी जांच पूरे बगैर कैसे गृह मंत्री जी बताएंगे? नहीं, मैं मानती हूँ कि जांच से पहले गृह मंत्री तो बयान दे ही नहीं सकते, गृह मंत्री को उसके बाद ही बयान देना चाहिए। मगर क्या कोई आश्वासन था जो विपक्ष को दिया जा सकता था? वॉज देयर सम काइंड ऑफ अश्योरेंस दैट कुड हैव बीन गिवन आउट टू द ऑपोजिशन मेंबर्स इफ दे वर डिमांडिंग एन आंसर? देखिए, लोकसभा स्पीकर ने आश्वासन दिया था, हमने कमेटी बना दी है और आगे की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, ये लोकसभा स्पीकर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। ये इनको मान लेना चाहिए था। लेकिन इसका आगे जो भी हो रहा है और पीछे जो भी हो रहा है, अडानी के लिए उन्होंने हाउस नहीं चलने दिया, फिर मणिपुर के लिए हाउस नहीं चलने दिया। ये मैं पूरा इनकी मानसिकता है, इनके पास कोई तैयारी नहीं है, इनके पास टैलेंट नहीं है। और ये मुझे लगता है जब तक ये दो नहीं आ जाएंगे बीजेपी की तरह, जब हम दो रह गए थे, तो कांग्रेस भी दो ही रहना चाहती है, ऐसा इनका आचरण लग रहा है। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहा हो इतनी बड़ी पार्टी का, क्या ऐसे? चलिए, मैं क्लोजिंग कमेंट्स के लिए एसटी हसन साहब के पास जाऊंगी, वो सबकी बातें सुन रहे हैं। हसन साहब, डू यू बिलीव विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इट्स ऑलमोस्ट ओवर नाउ, वी आर ऑन वेडनेसडे। 3 बहुत अहम बिल्स थे जो आज लोकसभा ने पारित किए, क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल्स थे, और कहीं ना कहीं भारत की न्याय व्यवस्था को वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन लाएंगे। और एक नागरिक के तौर पर मेरी उम्मीद यही थी कि वहां पर विपक्ष भी मौजूद हो, उस पर बहस हो, मगर कहीं ना कहीं इस डिसरप्शन पॉलिटिक्स ने लेजिस्लेटिव बिजनेस को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है। हम क्यों नहीं थे वहां पर? हम सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि हमें निकाल दिया गया। हम होते तो हम बहस भी करते। क्या जो अभी भाई जिस तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं ना सारे इशू को, और कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी उस जाल में फंस रहे हैं। इशू हैगा उन आतंकवादियों का जो पार्लियामेंट में घुसे जी। इशू मिमिक्री नहीं है जी, कोई सपोर्ट नहीं करता मिमिक्री को जी, लेकिन मिमिक्री होती आई है, पार्लियामेंट के अंदर भी हुई है। जैसे अभी आपके एक साथी ने हमारे बताया, क्या कार्टून नहीं बनते हैं लोगों के? क्या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कार्टून नहीं बनते हैं? क्या ओ माई गॉड के नाम से टेलीविजन पे कार्टून फिल्म नहीं आती है जिसमें मोदी जी भी होते हैं, राहुल जी भी होते हैं? नहीं, उपहास हमारे प्रजातंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है, जैसे किसी भी प्रजातंत्र का होता है। हसन साहब, क्षमा करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ आपसे। मेरे पास इतना ही समय है आज, दैट्स ऑल द टाइम आई हैव। आई अपोलोजाइज, आई हैड टू इंटरप्ट you there, sir. But Mr. Leher Singh Siroya, ST Hassan, Maluk Nagar and Kadimori Somu, thank you all for joining us on the broadcast. The politics of disruption has completely taken over the kind of proceedings we saw on the floor of the House, and the legislative business clearly has taken a backseat.